ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਢਿੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। MK ਭਾਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸਟਰ MK ਭਾਟੀਆ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ MK ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ MK ਭਾਟੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। सबसे पहले तो मैं ऑन एयर चैनल को थैंक यू करूँगा कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी अपने चैनल पे आने के लिए। और देखिए, ये मैं सभी को बोलता हूँ कि अपने जीवन में ना सपने ज़रूर देखो। ये सपने मैं बचपन में देखता था। मैं 8-9 साल की एज में अपने फादर के मेडिकल एजेंसीज़ पे बैठने लगा था, और 13 साल की एज में तो मैं फुल फॉर्म ही मतलब सपने देखने लगा था, और मतलब मेडिकल स्टोर पे भी बैठने लगा था। और हमारे कुछ क्राइसिस हो गई थी, तो हमारा एक मेडिकल स्टोर, हमारा जो मेडिकल स्टोर जो है वहाँ पे एक नए डॉक्टर आए थे गंगाराम हॉस्पिटल, उनके सामने हमारा रिटेल का मेडिकल स्टोर हमने खोला था। मैं डॉक्टर साहब की मेहनत से इतना प्रभावित था, और बचपन में मैं आपको बताऊँ जितना अभी मेरा केबिन है इससे भी छोटा हमारा मेडिकल स्टोर था, और वहाँ पे मैं रात को भी वहीं सोता था। मैंने अपनी जो पढ़ाई करी है जितनी भी करी है, तो क्योंकि वहाँ क्या था कि रात को पेशेंट्स वगैरह आते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी मेडिसिन की, तो वहीं मैं पढ़ाई कर रहा होता, सपने देख रहा होता था। और अपने जो मेरे कोलीग्स थे उस टाइम के, जो फ्रेंड्स थे आसपास के, मैं उन्हें बोलता था कि एक दिन बड़े होकर ना मैं भी कंपनी खोलूँगा, मेरा भी ऑफिस होगा जैसे फिल्मों में देखते थे। तो सब हंसते भी थे कि यार ये बहुत बातें करता है, ऐसे पॉसिबल थोड़ी ना। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ माता रानी एंड आप सबके ब्लेसिंग से, बड़ों के आशीर्वाद से वो सपने मेरे पूरे हुए। और आज आप देखिए हमारे मल्टीपल ऑफिसेज है, और मेरी एजुकेशन कम होने के बावजूद हर चीज़ सीखने की कोशिश करी कि कॉरपोरेट का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, टीम को कैसे हम हैंडलिंग कर सकते हैं, HR डिपार्टमेंट क्या है, परचेज डिपार्टमेंट क्या है। और सिख फैमिली का मेरी लाइफ में बड़ा योगदान रहा। मेरे बेस्ट फ्रेंड बचपन से सिख फैमिली से ही रहे, और पता नहीं कुछ डिवाइन ही है सिख फैमिली से मेरा भी लाइफ का। और एक फ्रेंड को तो ढूंढ भी रहा हूँ, बचपन में उनके फादर ने ही मोटिवेट किया था कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। बैंक में थे वो, अभी जलंधर में है कहीं और या बाहर है, मैं ढूंढ रहा हूँ उनको, सोशल मीडिया पे भी नहीं मिले। उसका नाम प्रितपाल खेड़ा है। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से भी उन तक बात पहुँच सकें तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और मेरा मानना है कि लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, विश्वास किसी भी चीज़ में। और वो विश्वास सबसे पहले होना चाहिए हमें भगवान पे, सबसे पहले, क्योंकि भगवान ने, गॉड ने हमें एक लाइफ दी है। अगर हमें जानवर बना देता, कोई पक्षी बना देता, तो आप क्या कर सकते थे। हम इंसान को इतनी पावरफुल बनाया है, ह्यूमन बींग्स को इतना पावरफुल बनाया है, और उसको ही एक पावर दी है कि मैं सुसाइड के ऊपर भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा आजकल डिप्रेशन की वजह से सुसाइड एक मतलब एक बहुत चल रहा है और बड़ी लोग परेशान है।
ਗੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜੇ पहुंचे हो ਤੁਸੀਂ? सर मैं जब 5 साल का था, मतलब मेरी मदर की डेथ हो गई थी और उनको पता नहीं क्या कोई डिप्रेशन सा आया और गुस्से में, इरिटेशन में, मतलब उस टाइम स्टोव मिट्टी का वो चलता था, कुछ पानी वानी गर्म करने के लिए, गुस्से में उन्होंने कुछ डाला और वो मतलब बर्न हो गए और बड़ी भी मतलब 10-12 दिन हॉस्पिटल रहे। फादर का भी हाथ जल गया था और मुझे याद है कि मैं मतलब छोटा था और मतलब उनकी इंतज़ार करता था, तो चिट्ठियाँ लिखता था, किसी से लिखवाता था कि कब आओगे। तो उसके बाद लाइफ में मतलब देखिए फादर की सेकंड मैरिज भी हुई, उसके बाद जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आई वो सोसाइटी की वजह से आई। मेरा मतलब ये एक फ़िल्म भी बनाने का मन है, वैसे तो 5 मूवी के नाम हम रजिस्टर्ड करा चुके हैं। उस फिल्म का नाम होगा मेरा क्या कसूर। तो एक बच्चे के साथ एक मेंटली जो मेरा वाला अटैक हुआ वो यही था कि समाज में कि यार इनकी मदर की डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, ये कैसे वैसे, कई बार तो ऐसा ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ। मेरे साथ सर एक और दिक्कत हुई थी जिसने मेरे को बड़ा डिमोटिवेट किया। मेरे को इतना याद है कि किसी क्लासमेट के साथ मैं रेगुलर बैठता था, तो जैसे ही मतलब मैं मतलब वहाँ बैठने लगा तो किसी की मम्मी उन टीचर को बोल रही थी कि यार इसके साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई है, मेरे बच्चे के वो इसके साथ ना बिठाओ। तो मेरे साथ कोई बैठने के लिए भी मतलब टीचर को बोल देते थे कि इसके साथ। ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। हाँ मतलब सर ये होता है, मतलब मैं मतलब बताऊं कि समाज में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसको सपोर्ट करने के बजाय उसको मतलब डिमोटिवेट करते हैं। तो मेरे 5 साल मतलब मैं बताऊं तो स्कूल में भी बड़े ख़राब गए। 6th क्लास तक मैं ऐसे ही रहा, मुझे मतलब जो याद है मेमोरीज़ है, क्योंकि सब परेशान थे मेरे से, मेरा दिमाग लगता नहीं था स्कूल में, मेरा मन नहीं करता था, बाहर ही रहता था क्लास के। 6th क्लास में मुझे एक सिख फैमिली, मैंने आपको पहले ही बताया, उनके पापा मेरे फादर के थ्रू मिले, बैंक में थे, उनका बेटा भी मेरी सेम क्लास में था जिसका नाम प्रितपाल खेड़ा है। तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो लाइफ में अगर मैं दूसरी पार्ट कहूँ कि मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम उस वर्ड को बोलते हैं बट वही बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा था, जब उसको मोटिवेशन मिली, मैं क्लास में पढ़ने लगा, अच्छे नंबर आए। फिर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थी तो मैं एक और बड़े मज़ेदार किस्सा है, मेरे मम्मी के चाचा जी हुआ करते थे, तो मैं उनसे इंस्पायर हो गया था कि वो ना, उनके बारे में किस्सा था कि वो जब इतने मतलब परेशान थे कि मुंबई बिना पैसों के गए थे, बिना पता नहीं जैसे भी गए थे, जो उनका किस्से सुने हुए थे। और जब वो मुंबई गए, स्ट्रगल करी, मेहनत करा, तो उनको मतलब इतने रिच हो गए कि जब एक बार उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था तो दरवाजे जो है मतलब उनके हैंडल सोने के थे। तो बड़ा उनसे इंस्पायर था कि लाइफ में ऐसा भी होता है। बट एक चीज़ और भी थी कि मतलब उनकी एक ही चीज़ और मशहूर भी थी, वो मैं अभी हंस रहा था कि मैंने वो भी विश मांगी, कहीं पर मुझे नुकसान भी होता है कि उनके एक और वो थी कि जब वो मतलब उनके बारे में सब ये कहते थे कि यार थोड़े लापरवाह है, कभी उनकी गाड़ी में से ड्राइवर पैसे ले जाता है, कभी कुछ ले जाता है। तो मेरे साथ भी अभी बीच में हुआ, थोड़ा लापरवाह हूँ, कई बार पैसे इधर उधर खो देता हूँ। तो अभी अपनी बिटिया को उस दिन बता रहा था कि मैंने गॉड से विश करी थी कि यार मेरे को लापरवाह बनाए कि बार बार पैसे भी खोए थोड़े से। तो उसने कहा पापा ये क्यों? मैंने कहा बेटा बार बार पैसे हो गए तभी तो खोए गए। तो ऐसे ऐसे किस्से लाइफ के थे, तो उसने मोटिवेट किया। सबसे बड़ा मेरी लाइफ में एक और सबसे बड़ी वो थी, उस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पॉजिटिव लिया? हाँ पॉजिटिव लिया। तो मैं एक और मेरी लाइफ की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे जो दादाजी, मतलब मुझे नाम का बड़ा शौक था शुरू से ही। मेरे दादाजी का रंग डार्क था, पर कहते थे वो उनका दिल जो था ना इतना बड़ा था, मतलब कि उन्होंने आके भट्टे क्रैशर बनाए और बड़े से बड़े मिनिस्टर हो या हमारे भट्टे के मजदूर या क्रैशर हो, वो सबके साथ एक इक्विवेलेंट होते थे। तो उनसे मैं बड़ा इंस्पायर था और सबसे बड़ी उनकी चीज़ से इंस्पायर था कि नाम, मैं जब बड़ा हो रहा था तो यही चर्चा होती थी कि उनका नाम बहुत है। आज भी 40 साल बाद, सर आप यकीन नहीं मानोगे, 40 ईयर्स हो गए उनके डेथ को। आज जहाँ हम रहते थे वहाँ हमारा अब किसी का घर नहीं है, बट वहाँ अभी एक बोर्ड लगा है, और सॉरी द्वार पे नाम लगा है, उनके नाम लिखा है। तो मैंने उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। मेरे फादर का भी एक टाइम पे नाम था। तो जब मैं 2002 में फेल हो गया बिल्कुल, मेरे सिस्टर की अच्छा मेरी 2 सिस्टर्स भी रियल सिस्टर्स, तो मुझे एक चीज़ और है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से मिल गई थी, क्योंकि पंडित जी ने जब मेरी मदर की डेथ हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब आप ही बड़े हो, आपको अपनी सिस्टर्स का केयर करना है। तो मैं मैच्योर फील करता था शुरू से ही। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਪਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਿੱਥੋਂ होया? सर स्टार्टअप यही हुआ कि मेडिकल स्टोर पे बैठता था और हम मतलब बिज़नेस राइज कर रहा था। तो 2000 में मतलब मैं सब कंपनीज़ को राइजिंग देख रहा था। कहीं आज जो टॉप कंपनीज़ है उनके मतलब वो पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे,
तो मैंने उनकी सब जर्नी देख रहा था कि कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे भी शौक चढ़ा कि मैं अपनी कंपनी शुरू करूँगा। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰटिंग ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ बनना है? सर हाँ, ये मेरा सपना, मैं बता रहा हूँ, जब 8th क्लास में था मेरा नाम वैसे मिथुन भाटिया ओरिजिनल, बट हमारी कंपनी जो इनिशियल कंपनी है उसका नाम मिट्स है। तो मैं कुछ पता नहीं उसमें ऐसे खेलते खेलते बस दोस्त के साथ कुछ ऐसे कोड वर्ड्स रखे, तो मैंने कहा बड़े हो गए मैं कंपनी का नाम रखूँगा मिट्स। और आज मैं लगता है कि वो मेरी मदर, क्योंकि उनका नाम एस से है, तो मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो कुछ एस से किसी डिवाइन पावर ने आके हेल्प करी है, तो वो एस से मुझे लगता है वो मदर का ही नाम है कि मिट्स का नाम हमने सोच लिया था। 2000 में मैं मतलब अपने मेडिकल स्टोर से थोड़े से पैसे लेकर, मतलब उस टाइम ना इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो कुछ कंपनीज जो हमारे पास आ रही थी तो उनको मैंने देखता था कि वो मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं थर्ड पार्टी, तो मैंने कहा हम भी अपना प्रोडक्ट शुरू करेंगे। तो हमारे सामने एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, तो उनसे भी मेरा डिस्कस हुआ कि सर एक प्रोडक्ट लाना है, तो ऐसे ही मैं निकल गया। फादर बल्कि कहने भी लगे ऐसे थोड़ी ना कंपनी लगती है, रास्ते उसते पूछ के किसी से मैं बहादुरगढ़ पहुंचा। मैं ज़िंदगी में सर एक और मज़ेदार किस्सा है कि अब मैं लिमिटेड पैसे लेके गया था, ऑनलाइन ज़माना नहीं था, दिल्ली से बहादुरगढ़ जाना था, पहले तो दिल्ली तक पहुंचा किसी से पूछ पाछ के, और फिर उसके बाद बहादुरगढ़ जाना था। फिर मैंने कोई बस ली और वो बस में पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी और बस की टाइमिंग बड़ी लेट थी, तो ऑटो में जाना पड़ा। मतलब वो बस जब ख़राब हो गई 1 घंटा, तो लटक के गया था मैं। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, पैसे भी नहीं सी जेब ਦੇ ਵਿੱਚ फिर भी पहुंचे। कभी कभार ऐसा भी टाइम आया है, मतलब कि एक टाइम ऐसा भी आया कि कुछ, जब मैं 2002 में, ये तो अभी मैं आगे की जर्नी बता रहा हूँ, ऐसा भी टाइम आया कि मतलब मैं कहीं रुक नहीं सकता था, इतने पैसे नहीं थे, मैं होटल मेरे को मिलता, और मैं स्टेशन पे भी रहा हूँ कि ट्रेन की इंतजार करने के लिए मैं स्टेशन में भी सोया हूँ। तो ऐसी जर्नी तो लाइफ की अलग अलग डिफरेंट देखी है, बट कोसा नहीं कभी भी। मैं एक और किस्सा बताता हूँ कि वैसे मैं आपको वहाँ से जर्नी बताता हूँ कि सन 2000 में मैं फर्स्ट प्रोडक्ट लेके आया, आज हमारा टॉप ब्रांड है वो मुजफ्फरनगर और मेरठ में। उसके बाद मुझे समझ नहीं थी, शौक थे कि बड़ा बनना है, तो मतलब मैं कहूँगा कि मतलब जो कहते हैं कि फेवरेबल टर्म्स पे किसी ने लगा कि ये इन्वेस्ट करता है पैसे, तो उनसे अनफेवरेबल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट ली। लॉसेज इसलिए हुए कि प्रॉफिट उन्हीं को बहुत ज़्यादा चला गया और कुछ इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी हो रही थी। तो 2002 में अपनी सिस्टर की जब शादी करी, उसके बाद कुछ ऐसी कई लोगों से डिस्प्यूट हो गए, तो मतलब बस उस डिस्प्यूट के चक्कर में वो आई गॉट ए बिग फेलियर। प्रोजेक्ट बड़ा चल रहा था, बट 1 करोड़ के मैं मतलब नेट उसमें था कि 1 करोड़ रुपए की देनदारी थी, जो एसेट्स थे वो पैसे देने को तैयार नहीं थे, और आई हैव टू गिव 1 करोड़ रुपीज़। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। सर वो फेलियर ऐसा था, अभी आप कभी मुजफ्फरनगर में किसी से पूछें कि मैं कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता था, मतलब किसी के पे अपने फ्रेंड के शॉप पे भी नहीं जा सकता था। और मतलब क्योंकि मेहनत करी थी, सब लोग जानते थे, पहले फादर का नाम, दादाजी का नाम, मैं मेडिकल स्टोरों पे, डॉक्टरों पे विजिट किया है, तो चर्चाएँ ऐसी नेगेटिव चर्चाएँ भी बहुत जल्दी फैलती है। तो मैं अपने एक मुस्लिम फ्रेंड से 1000 रुपये, वो भी पहले उस हॉस्पिटल में मतलब सीनियर ओटी टेक्नीशियन था, तो उसने देखा मैं परेशान हूँ, तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने उसको बताई थी। फिर उससे 1000 रुपये उधार लिए थे, और 1000 रुपये उधार लेके मैंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ। मैं वैष्णो देवी गया था, माता वैष्णो देवी, और 1-2 दिन पता नहीं कैसे वहाँ रहा। उसके बाद फिर कुछ सोचा कि कैसे कैसे करना है, तो वो 3-3.5 साल की मतलब एक युद्ध था, और 2006 तक मतलब काफ़ी लाइबिलिटीज़ उतर गई थी। उसके बाद फिर एक और डिवाइन पावर हुई कि पता चला कि कुछ मेरी मदर के नाम की प्रॉपर्टी है, कुछ मेरे को कुछ और पैसा आया वहाँ से, फिर जो बचा कुचा था, जो मतलब मेरे हाथ में थोड़ा पैसा बच गया, फिर लाइबिलिटी उतर गई। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी, सर 1 करोड़ का अगर 3.5 साल में मतलब आपने कर्जा उतार दिया था, तो इसका मतलब अर्निंग भी करी होगी ना। तो फिर कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में पहुंचा कि यार, फिर मैंने खरीदी सबसे पहले अपनी लाइफ की सबसे पहली कार। पापा के पास तो थी पहले, दादाजी के पास भी थी, बट वो तो सब चली गई थी। तो मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहले कार खरीदी वैगन आर। तो बल्कि मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स कहने लगे कि यार अभी फेलियर से निकला है, अब फिर मतलब एक हाथी ले रहे हो, कार एक हाथी होता है, उसका खर्चा भी है। मैं कहा मुझे बड़ा बनना है, क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी, तो कारों की कहानी वहाँ से शुरू होती है। और एक और चीज़ है सर, जब मैं परेशान हुआ तो मैं मतलब रोता भी था, और मैं सहारनपुर भी रहा हूँ, मैं नोएडा रहा हूँ, मेरठ रहा हूँ, अलग अलग शहरों में रहा हूँ, देहरादून रहा हूँ। तो अब उसको अगर पॉजिटिव कहूँ तो पॉजिटिव ये है कि मैंने इतने सारे शहरों की लोकेलिटी देखी, वो आज काम आती है, आज किसी भी शहर में चला जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक किस्सा हो रहा है कि 2002 इन्हीं पीरियड में, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, जब मैं सहारनपुर में पहुँचा, तो सहारनपुर में मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किराए पे घर ले सकूं।
और मुजफ्फरनगर में मैं टिक नहीं सकता था। तो मैंने 1,000 रुपये फिर कहीं से लिए। 1,000 की बड़ी कहानी रही। एक बार तो सिस्टर ने कह दिया था कि 1,000 रुपये है क्या तेरे पास, तो बड़ी मतलब एक कहानी ऐसी रही। ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ। उसका मैं एक और बताता हूँ। तो मेरे पास एक हकीकत नगर सहारनपुर में एक जगह है, तो वहाँ किसी से ढूंढते ढूंढते एक मतलब रूम लिया, छोटा सा रूम था, तो 700 रुपये का रेंट था। तो मैंने ऑनर से ले लिया कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे दे दो, तो उसको जमा कर दिए। अब मेरा सामान भी नहीं था, मेरे पे कुछ भी सामान नहीं था, घर से अलग था। तो उसको अब ये कहता है कि मैं बिल्कुल फेल हूँ। तो सर आपको भी पता है कि अगर किसी को आप कह दो कि मैं बहुत परेशानी में हूँ तो कोई आपको घर भी ना देता शायद। तो मैंने उनको बोला, आलोक जी उनका नाम है, और मैंने आलोक जी अभी आ रहा है मेरा सामान। तो हफ्ता मैं मतलब बिना फोल्डिंग के सोया हूँ, ज़मीन पे भी सोया हूँ। फिर उन्होंने मेरे को फोल्डिंग दिया। बट वो रूम में एक चीज़ थी, मतलब मैं बहुत रोता भी था, मतलब कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी क्या गलती है कि बार बार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरा लक ख़राब है, मतलब भगवान जी को भी कोसता था। बट एक चीज़ थी उस रूम में कि लिखा हुआ था नो बडी रिमेंबर लूज़र, एवरीबडी रिमेंबर विनर। तो वो मेरे माइंड में हुआ कि भाई ज़िंदगी अगर मतलब करना है तो विनर बनना पड़ेगा। और उस घर से जब मैं निकला हूँ तो कार लेके निकला हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स भी कम हुई, बिज़नेस भी सेट हुआ। और फिर उसके बाद भी आए फेलियर्स, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे शौक था कंपनी बड़ा करने का, नाम करने का। तो जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो मतलब फेलियर चलता है। बट मेरे को लगता है कि मैं अभी अगर यंगस्टर्स को एक मैसेज दूँ, वो फेलियर्स नहीं होते, डैट इज़ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मतलब आप कोई भी काम करना है तो आप पहले दिन नहीं होता सर कोई भी काम। हमारे पंजाबियों में मैं पूरी वो नहीं बता पाऊंगा, आप ही बताओगे। वो ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। यस यस, ये सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम है कि, और इसलिए देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने कहा ना कि अगर हम फॉरेन के हिसाब से सोचें तो वो लोग ये सोचते हैं कि अगले 5 साल हमें इन्वेस्ट कितना करना है। बट अगर हम अपनी एक मेंटलिटी से सोचें, हम सोचते हैं कि आज बिजनेस शुरू कर लिया और हमें कल प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, तो वो लॉस नहीं होता। वो एक, मैंने अभी पहले ही बोला, वो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि मेरा ये गोल है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ सर, मैं अपनी टीम को भी ऐसे मोटिवेट करता हूँ। आपने अगर एक गोल बना लिया, मुझे बहादुरगढ़ जाना था ना, तो ऑटो में भी गया ना। अगर आपने गोल बना लिया कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली पहुँचोगे ना। अगर आपको गर्मी लग रही है, कोई कार खराब होगी, कोई बस खराब होगी, आपका गोल है। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਹਿਤੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ दूर नहीं है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ पहुंचे। दिल्ली पहुंचा सर। मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जब हमारी एक टीम के मेंबर हैं, अभी वो मैम तो दुबई को 2 बार ट्रिप मिला उनको, वो नई नई आई थी, तो वो ना बिज़नेस कर ही नहीं पाती थी हज़ारों में, और उनको कॉन्फिडेंस डाउन था। मैंने कहा एक तो हमने अपनी कंपनी में ना एक और चीज़ बहुत करी हुई है, हमने टारगेट वर्ड, जो सब परेशान होते हैं टारगेट कितना है, हमने उसे हाँ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। हमने सर टारगेट वर्ड ही हटा दिया। हमने ये कहा है कि विशेज़ रखो इसे। हमारे जितने भी आपको किसी का रजिस्टर मंगाता हूँ, हम विश लिखते हैं कि आप इतनी विश करो, कि आपने लिस्ट विश करो कि अगर आप उस गोल को अचीव कर पाओगे तो आप आगे सक्सेस होते चले जाओगे। तो एक मैम को ऐसे ही मैं बता रहा था, मैंने कहा मैम आप ये समझ लो कि 5 लाख रुपए का अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, एग्जांपल के लिए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिगर्स, तो इसका मतलब आप दिल्ली जा रहे हो, 10 लाख का बिज़नेस कर रहे हो तो आप जयपुर जा रहे हो, और 15 का कर रहे हो तो आप गोवा जा रहे हो। एंड शी डिड ऑल द बिज़नेस, करोड़ों को बिज़नेस करा, और वो दुबई का ट्रिप भी मिल गया उनको। तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। मैं एक मैसेज बहुत मतलब ये मैंने सर, जब भी मैं 3.5 साल पहले भी मेरे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम आई, तो मैंने फिर सोचा कि भाई ये क्या है। तो मैंने फिर ना ये, मैं यंगस्टर्स को मोटिवेट करता हूँ, आपकी लाइफ में ना जो जो आपको मिला है, मैंने दादाजी का मतलब मैंने दादाजी को याद किया, दादाजी से ब्लेसिंग ली, तो दादाजी की तरह मेरा भी कई बार रंग डार्क भी हो जाता है और डार्क भी है। तो बट उनकी क्वालिटी आ गई कि कोई बड़े से बड़ा बंदा हो या छोटे से छोटा बंदा हो, मुझे मतलब एक समान लगता है। वही हमने अपने ऑफिस में लगाया कि कुर्सी पे हमारी पोजीशन अलग है, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमैनिटी। सेकंड चीज़, ऐसी मेरी दादी, उनके बारे में कहते थे उनका मेमोरी उनकी बड़ी स्ट्रांग है, तो उनकी मेमोरी आ गई मतलब उनकी। बट हाँ उनकी सबके साथ देखिए, एक और मैं इंसान वाली बात बताऊँगा कि अभी उस टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसी मदर की जब पावर ली, तो मदर से ये सीखा कि लाइफ में लोगों को मोटिवेट करना है, और लाइफ में डिप्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फादर, ये जो मेरा चश्मे वाला स्टाइल है, आज मैं एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, मेरे फादर इस तरह में एक्टिव थे। मीडिया, मेरे फादर के साथ मीडिया होता था, उनको कहते थे अरे छोटे होते अरे भाई मीडिया आ गया, अब वो भगवान का आशीर्वाद मिल गया, मीडिया के साथ होता हूँ। सिस्टर्स मिली,
तो सिस्टर्स की वजह से गर्ल्स से पॉजिटिविटी आई, बेटियां है तो इसलिए बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी लाइफ में चीज़ें जब पॉजिटिव ढूंढने पे आए ना तो सब कुछ लाइफ में चेंजेस आ गए। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर मैं एक ही चीज़ सीखता हूँ, ये चेंजेस भी मेरे पे तब आए। अभी अभी देखिए, मैं वैष्णो देवी की मेरे साथ बहुत बड़ी कहानी है। मैंने सुना था कि मेरे से बड़ा एक भाई होता, तो वो मेरे से पहले ही एक्सपायर हो गया था, 6-7 महीने का था। तो मेरे फादर ने विश करी थी कि मैं अगले बच्चे को वैष्णो देवी ले जाऊँगा। तो मेरी एक जर्नी वहाँ से शुरू हुई। फिर मैं बीच में जाता था वैष्णो देवी। जब मैं फेल हुआ तब वैष्णो देवी गया। फिर और लाइफ में पार्ट्स थे तो मैं वैष्णो देवी हमेशा जाता रहता हूँ और जाता था। अभी पिछले साल, मतलब हम तब तक कारें भी नहीं दी थी, पिछले साल भी हम वायरल हुए थे। ऐसी टीम के साथ प्रोग्राम बन गया। वैसे भी पहले भी ले गए थे हम 6-7 जनों की टीम को। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 700 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। सर मैं चंडीगढ़ आया 2015 में, सपना लेके आया कि मतलब कंपनी बनानी है। समझ नहीं आता था कि टीम को कैसे सस्टेन करूं। तो समझने की कोशिश करी। कुछ लोग आते थे, छोड़ के चले जाते थे। हम कुछ लोगों को समझाते थे कि आप अगर ग्रो करोगे तो हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। कुछ टीम को कि एक दिन देखना काम करो, हम कंपनी से कार्स प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ लोगों ने वो सीरीज़ बनते बनते 12 लोग तो पिछले साल ही हो गए थे जिनको पिछले साल हमने कार दी थी। तो उसमें शिल्पा मैम सबसे आगे है, नेहा मैम, बिला। वाकई सच्चाई है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सर आप टीम से पूछ लीजिए, मतलब शोरूम से पूछ लीजिए। और इनकी अब तो ये तो बात की बात है सर, हम तो जिन जिनको कारें पिछले साल दी थी उनकी तो शादियाँ हो रही है सर। तो ये तो आप टीम से पूछ सकते हैं सर। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ, मतलब जिनकी नहीं हुई हुई थी शादी, मतलब शिल्पा में सीनियर थे तो उन्हीं की शादी पहले हुई हुई थी। तो अभी सभी की निर्दोष बैठे हैं, मिस्टर बिलाल है और मतलब बहुत सारे लोगों, सबकी शादियाँ चल रही है सर। यंगस्टर हैं, देखिए मतलब उनको जब लाइफ सेटल होती है, देखिए उन्होंने एक तो ग्रो किया, फिर एक लग्जरी तो नहीं कहूँगा मैं आज के टाइम में, कार एक रिक्वायर्ड थिंग है, तो उससे भी फ़र्क पड़ा। जब किसी कोई सम्मानित होता है ना सर, देखिए कार देने के साथ साथ मैं इनको कहता कि मतलब देखिए मीडिया का सबसे बड़ा थैंक यू कि उन्होंने सबको हाईलाइट किया। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि जब बंदा सम्मानित होता है ना सर, आप कार आज खुद खरीद के लाओ और अब वही कार कोई आपको कहे कि कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है। गिफ्ट वर्ड को भी अगर मैं हटा दूं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सम्मान मिला, कि जो आपका नाम हो रहा है पूरे इनके रिलेटिव्स में, इनके फ्रेंड्स में, अरे भाई तुम्हें मिला, इसका मतलब आपकी कैपेबिलिटी को सराहा गया। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस वर्ड को आप नोट करोगे ना तो सब चीज़ों का मतलब बदल जाएगा। तो उनके चेहरे, मतलब जिनको कार्स मिली थी सर, मैं पिछले साल की बात बताऊँ, हमने 12 जो कारें दी थी तो पहले डिसाइड किया कि 4 लोगों के लिए ला रहे हैं क्योंकि कार बुक करनी थी। तो हमने इनको बहुत टाइम से कह रहे थे कार्स लानी है 3-4 जनों को, तो ये सब अवॉइड कर देते थे क्योंकि अभी सब मतलब बाहर के हैं हमारे पास ज़्यादातर। तो किसी के पास रखने की जगह नहीं, किसी को चलानी नहीं आती, किसी का माइंडसेट ही नहीं है क्योंकि अपनी पर्सनल ग्रोथ में लगा हुआ है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसी के ब्रदर की शादी है, किसी की सिस्टर की शादी है। तो मैं जब इनको कहता था कि कार तो सब हैरान हो जाते। एक दिन बस मैंने कहा कि एक मैम को साथ में ले गया, मैंने कहा यार कार शुरू करो भाई। तो हम पहले 4 कार लाए, तो किसी को चलानी नहीं आती थी सर। और ऐसे ही 12 लोगों को जब कार मिली तो मुझे नहीं लगता कि, मेरे ख्याल से 11 लोगों को नहीं आती थी कार चलानी। तो मतलब बड़ा एक डिफरेंट चेंज था। और उनकी लाइफ में आप किसी से भी इंटरव्यू लोगे कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया कार से, ये तब आपको पता चल जाएगा। अगर मैं उनको पैसे भी प्रोवाइड कर देता ना सर, वो खुशी जो कार मिलने से मिली ना वो नहीं मिल सकती थी। उसका रीज़न है, उसका भी रीज़न है। देखिए अगर ये भी मैंने सीखा, अगर आज 4 साल के बच्चे से भी पूछो ना कि भाई बेटा क्या आपको, उसको हमारे से ज़्यादा कार्स के नाम पता है। ये जो अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ है, तो इसमें ये चीज़ें ना मतलब सबके लिए अब रोटी कपड़ा मकान आज के टाइम की मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट है, ये परेशानी है। क्योंकि आज कोई जॉब की कोई कमियां नहीं है, काम की किसी चीज़ की कमी नहीं है, और कोई करना चाहे तो बहुत ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪਛਾਣਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ।
सर ये देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले तो गॉड का ही थैंक्स आएगा कि गॉड ने मुझे कैपेबल बनाया। कहाँ प्रॉब्लम से रहा, कहाँ यहाँ तक आया। और दूसरा, मैं अपनी टीम को भी थैंक्स करूँगा कि अगर ये लेने वाले ही ना होते, अगर ये कैपेबल बंदे ही ना मिलते मेरे को, तो आज जो हम वायरल भी हुए और ये मेरे नाम टैग लग गया तो वो ना लगता। एक और बड़ा मज़ेदार है सर, और ये लाइफ में सबके साथ आता है, मतलब जब इंसान परेशानी में होता है ना, तो इंसान गॉड को और अपने लक को कोस रहा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैं भी कभी कोस रहा होता था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मैं इनबिल्ट, हम कहते हैं भगवान हमारे अंदर है, तो मैं इनबिल्ट बात कर रहा होता था। तो मैंने गॉड से कहा कि मैंने कहा कि जो मेरा फेलियर हुआ है, अगर मेरे से मिस्टेक हुई है तो गॉड मुझे रास्ता दिखाओ। लोग मुझे कह रहे थे कि बेईमान है, ये ऐसे हैं। मैं कहा अगर मैं दिल से करी हूँ तो आप मुझे परेशान रखना, और अगर मैंने दिल से गलती नहीं करी हो तो एक दिन मुझे शहर में कार में नाम से भेजना। और आज मतलब कई गाड़ियों का रिकॉर्ड बन गया अपने उसमें लाइफ में। तो ये देखो भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES। हाँ जी, हाँ जी। सो मैं वही कह रहा हूँ कि ये गॉड का धन्यवाद है और पॉजिटिविटी का धन्यवाद है, बड़ों के आशीर्वाद का धन्यवाद है। मेरा एक स्लोगन भी बनाया है कि मतलब आप सबसे पहले तो गॉड को धन्यवाद करो पूरा पूरा, बड़ों की रिस्पेक्ट करो पूरा पूरा, छोटों को प्यार दो पूरा पूरा, काम करो ईमानदारी से पूरा पूरा, काम के टाइम पे काम पूरा पूरा, और फन के टाइम पे फन पूरा पूरा, फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा पूरा पूरा। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ स्टार्ट करता कैरियर, उस तो बाद कितने तक पहुंचता। ऑफिस है वो वाले ऑफिस में सीईओ मैम बनाया हमने, जो फर्स्ट टीम मेंबर है हमारी चंडीगढ़ की, जिन्होंने सबसे पहले साथ दिया। शी टू कंट्रोल ओवर द ऑल फाइनेंस, उनको सीईओ बनाया, तो उधर वाला ऑफिस वो संभालते हैं और केबिन मैं भी जाता हूँ। और ऐसे ही अभी लंच टाइम हो रहा है तो ये हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ परचेज डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। ऐसे ही हमने कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ है कि मतलब कोई मीटिंग्स करनी है ना। लंच टाइम जैसे अब लंच टाइम हो गया। अभी इस बार ही सर किशन जी भी हमने अभी जन्माष्टमी में आए थे। हम हर त्यौहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी गणेश विसर्जन भी हमने करा था, और हमारे हर त्यौहार मनता है सर। मतलब कोई मतलब क्रिसमस पे भी मनाते हैं, ईद पे भी हम सेलिब्रेशन करते हैं, और हर त्यौहार को मतलब सेलिब्रेट करते हैं टीम के साथ। मैंने भी सुन एक चीज़ हो रहा है सर, हर महीने हवन होता है हमारे यहाँ, और हवन वो करता है जिसका बर्थडे होता है, और हर किसी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। और अब मैं आपको बताऊँ, अभी भी हम कहीं आज देख रहे थे, जैसे हमने ट्रेंड शुरू किया था, अब और कंपनियों में भी सब मतलब वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। इससे वो नाम ही आपका ट्रेंड सेटर बन गया ना कि मिस्टर भाटिया ट्रेंड सेटर। ये गॉड का ही ग्रेस है सर, इससे बड़ा क्या ग्रेस होगा। सर मैंने सुना कि आप बॉम्बे गए थे, ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसके 1-2 स्टोर्स हमने खोले थे, अभी इसे और स्टोर्स खोलने हैं, जिम सप्लीमेंट्स और इसमें परफ्यूम्स ला रहे हैं, और मतलब मिट्स की हर चीज़ ला रहे हैं। और हमारा सपना है कि आटा भी लाए एक दिन। ये हमारी एक कंपनी है, मुंबई का भी बताता हूँ। तो ये सारे शाइन प्रो है हमारी ये कंपनी, ये सर सारे हमारे मेडिसिन प्रोजेक्ट है, और ये हम इसकी ब्रांडिंग करते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग खुद करते हैं इन हाउस, और इसको अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे हम इसको बना रहे हैं। बड़ी जल्दी हम प्रोडक्शन यूनिट भी लगाना है इसका। बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी तो उसी जड़ी सर हमारी अब फार्मास्यूटिकल नहीं, हमारी आईटी कंपनी भी है, एक एविएशन कंपनी भी बनाई है, अभी उसमें डील 1-2 ही हुई है। मेरा मन तो अभी हमने इसको ऑटोमोबाइल्स में रजिस्टर्ड कराया। मेरा सपना है, जब भगवान ने गॉड ने यहाँ तक पहुँचाया है, और ये इसीलिए टीम को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यही टीम आगे समझा लें। इस कंपनी को मैं टाटा से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, इस कंपनी को हम ट्रस्ट बनाएं, जो सिर्फ पैसों कमाने की बात ना करें, समाज के भले की भी बात करें। तो मल्टीपल सेगमेंट में हम लोग, मीडिया भी हमने स्टूडियो बनाया हुआ, नीचे आपको दिखाते हैं। हाँ जी, जरूर प्लीज नाल चलते हैं, अपन देखते हैं। मैं सबको एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। ये वैसे मैंने कहा ना, हर चीज़ कहीं से सीखी है। मेरा जो भांजा है आदि, मतलब ही वॉज ऑफ 4-5 ईयर्स, तो मेरी स्टोरी, अब तो वो मतलब 10 साल पुरानी बात है, तो मेरी स्टोरी सुनता था वो, मैं फेल हुआ, ऐसे हुआ, फिर ये मैं यहाँ से निकल गया। तो एक दिन मुझे कहता है, मामा मैं किताबों में लोगों के नाम पढ़ता हूँ कि वो मतलब बातें करते हैं आई एम पॉसिबल की, यहाँ तो कोई और कर ही नहीं रहा, तो मामा आपका भी किताब में नाम आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में वो आई एम पॉसिबल मतलब था तो, बट उसकी वजह से और दिमाग में आ गया। तो मैं सबको मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपका हर काम पॉसिबल है, अगर आप शिद्दत से करो ना, सीखने की बात करें तो हर चीज़ पॉसिबल है। लोग डरो ना, देखो ट्रेन कौन चलाता है सर? जो लर्निंग करता है। आप आज ये कर रहे हो, मैं कैमरा चल रहा है क्योंकि आपने सीखा है, मैं ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। पायलट कौन बनता है? जिसने ट्रेनिंग करी। तो बिजनेस कौन कर सकता है? जिसने ट्रेनिंग ली। डॉक्टर कौन बनता है? जो डॉक्टर की स्टडी करी। तो कोई भी काम से घबराओ ना,
फिल्म के डायलॉग है, मैं बच्चों को मैं सब कुछ फिल्म से देख के सीखा हूँ। एक चीज़ और है, जब मैं बहुत परेशानी के दौर में था तो सुनील शेट्टी जी की बचपन में ऐसे मिल के भी आया हूँ, उनकी मूवी देखी धड़कन, तो लोग कुछ और देख रहे होंगे, मैंने उससे ये सीखा यार ये इतने पुअर थे, मतलब था दिखाते हैं और थोड़े टाइम में इतना अमीर कैसे बन जाता है, तो उसका तरीका समझा और वो अपनी लाइफ में भी लगाया उसमें। हाँ, उसका सबसे बड़ा तरीका पता है क्या था, उन्होंने भी अपने लिंक्स बनाए बड़े बड़े, मतलब अपनी सोच बड़ी करी, हमने कार से अपने लिंक बनाए, अपनी डेवलपमेंट किया और देखो मीडिया आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और वो डेवलप हो गया। तो सोच बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ ज़रूरी है। 3 पॉइंट मेरी लाइफ में और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रहे, मैथ्स, ज्योग्राफी और फिजिक्स। भले ही मेरी एजुकेशन कम रही हो पर मैंने सीखा कि मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स है अगर तरक्की करनी है। नंबर्स, क्योंकि नंबर से मैं सबसे पूछता हूँ, नंबर से नहीं पता, अगर नंबर से प्यार करो। आज कोई स्कूल में पूछता है कितने नंबर आए, कौन सी क्लास में हो, कितने साल के हो गए, है ना, आप कौन सी गली में रहते हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने अपने स्कूल के टीचर को चीफ गेस्ट बनाया था कि सर मैथ्स ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरी लाइफ में जब फेल हुआ ना, भगवान पे ट्रस्ट और ये तो रहा, 1000 की प्रॉब्लम हुई ना, मैंने सोचा नंबर बढ़ाना है, 1000 में अटका रहूंगा ना तो 100-200 में जाके अटक जाऊंगा, 10,000 के बारे में सोचने लगा। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੰबर ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ये बहुत सबसे सर इसमें भी मेरे पे पॉइंट है कि एक नंबर की वजह से ना इंसान परेशान हुआ होगा। एक नंबर की ये ना करो कि मुझे ही नंबर 1 पे आना है, आप ये कोशिश करो कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे 100% देना है अपना। नंबर 1 की जगह 2 जीरो और बढ़ा लो कि 100% अपना अपनी लाइफ को दो। देखिए कोई भी गॉड की कहानी, जब भी किसी धर्म में, सब धर्म की बात सुनता हूँ, कोई भी गॉड की कहानी ऐसा है कि बिना परेशानी के है। अगर कोई भी कहानी में भगवान, कोई भी गॉड, मतलब आपके धर्म में, हमारे धर्म में जब भगवान ने अवतार लिया है तो उन्होंने भी दिखाया कि प्रॉब्लम्स भी है, नंबर 1 को भी प्रॉब्लम आई है, तो सिर्फ नंबर 1 के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम पूरा करो, फिर भगवान जी की मर्जी आपको कितने नंबर पहुँचा दें। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। सर ये हमने स्टूडियो बनाया था, मिट्स हमारी कंपनी है डिजिटेक इंटरटेनमेंट। डिजिटेक में हम आईटी देखते हैं, इंटरटेनमेंट में हमने स्टूडियो बनाया है। मेरा मन है 4 मूवीज़ मैंने आपको पहले ही बताया, और वैसे भी हम मोटिवेशनल इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं, तो ये हमारा वो है। ये इसमें आप देखिए, इसमें हमने ये प्रतीक है नटराज की मूर्ति, तो इसलिए मतलब इनको एंटरटेनमेंट के लिए उनकी ब्लेसिंग भी। तो हम हमारे यहाँ इस स्टूडियो में भी जाओगे ना, जब इसको डिज़ाइन किया था हर चीज़ पॉजिटिविटी पे डिज़ाइन करी थी। ये ड्रीम देख रही है पॉजिटिविटी का, ये पॉजिटिविटी का मतलब वो एनवायरनमेंट है, तो ये सब चीज़ें हमने इसको करने की कोशिश करी। इसमें कोई आर्किटेक्ट नहीं है, डिज़ाइन खुद करा है सर। हमारा एक बंदा है, मतलब अदनान भाई, मैं और वो ने प्लान किया था। ये जैसे कोई ऑडिशंस करने हो, किसी को इतने लोगों को वेट करना हो, तो उसके लिए ऐसे बनाया हुआ था। और देखिए एक मेरी बड़ी दिलचस्प कहानी है मुंबई से जी। सब मेरे को बोलते हैं कि यार इसका बहुत कुछ फिल्मी है। सर मैं सब कुछ सीखा ही फिल्म से हूँ। बचपन में जब कोई और रास्ते नहीं थे तो बुआ मेरी बॉम्बे ले जाती थी मेरे को। मैं 2-3 बार बॉम्बे गया। मेरे अंकल अभी नहीं है, वो सपने दिखाते थे, यार देख बॉम्बे आ जा। तो मुजफ्फरनगर से सपनों का शहर मतलब कह सकते हैं। हाँ, तो वहीं से मेरे सपने हैं, और अभी विशेज़ भी चाहिए। अभी परसों मेरा इंटरव्यू हुआ है मुंबई में, तो मेरा मन भी है कि मैं मुंबई में भी ब्रांच खोलूँ बहुत जल्दी, तो आशीर्वाद मिलेगा तो वहीं जा रहे हैं मुंबई भी। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਰਾਜਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ हरियाणा सर ये मेरे को ऐसे ही मौके मिलते चले गए, शौक थे मेरे को। और अब देखिए ये भी कहीं से विजुलाइज़ किया था। अभी मेरे सेठी ढाबा वाले फ्रेंड बने हैं, एक और यहाँ पे जो हमारा टॉप रेस्टोरेंट है, उन्होंने भी ऐसे लगाई हुई, तो मैंने वो वहीं से विजुलाइज़ कर लिया था कि मैं हमारे साथ भी ऐसे होगा। और जब सोच लिया तो अब ये बढ़ता है, अभी तो इसको और बड़ा करेंगे। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर कोशिश है, मतलब मन भी है कि कहीं ना कहीं अगर समाज में हम कहीं मौका मिलेगा तो मैं उसमें भी आना चाहूँगा। और बाकी गॉड की ब्लेसिंग, ट्रस्ट उन्हीं पे, अपनी सोच, अपने आप को तो फ्री छोड़ा हुआ है कि जहाँ गॉड कहेगा हम वहीं चल देंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 12 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 12 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ 15 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ? सर मैं अगर वैसे बोलूँ तो अभी 16-17 लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, और बाकी अभी 1 साल है। विश करेंगे कि हर बार गॉड हमें आशीर्वाद दें, नंबर्स बढ़ के ही हम गाड़ियाँ प्रोवाइड कर पाएँ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਂ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? सर देखिए अगर मैं, देखिए मल्टीपल सोच है मेरी। अगर मैं अपने ऑफिस की चेयर पे बैठता हूँ
तो ये इच्छा है कि इसकी कंपनी की जितनी ग्रोथ हो, मेरा सपना है IPO लाए हम अपनी कभी कंपनी का। और अभी हम मशहूर तो हैं, करोड़ों में व्यूज़ गए हैं। मैं चाहता हूँ ये इंडिया की, दुनिया की कंपनी ग्रुप बने और ट्रस्ट बने। ये एक फैमिली की कंपनी ना बने जो मेरे दादाजी के नाम से चलता आ रहा है। ये नाम हमारा अमर करें, हमारे परिवार का, और हमारी टीम जो इसको मिली है, हमें जो डिवाइन टीम मिली है, ये अलग अलग डिफरेंट पोजीशन में तरक्की करके इस ग्रुप को इंटरनेशनल ग्रुप बनाए। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 50,000 40,000 ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ? देखिए, मैं दोनों को बोलना चाहूँगा। एक तो एम्प्लॉयज़ को भी कि अगर आपको लग रहा है कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है तो सिर्फ आप देखिए, उसमें मेरी 2 चीज़ है। मैं एम्प्लॉयज़ को भी जो जॉब कर रहे हैं उनको कहूँगा पहले तो वो भी सपने देखें कि वो भी कभी एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, वो भी मतलब क्या कहूँ आपको, डिपेंडेंट हो सकते हैं, या वो भी जॉब क्रिएटर हो सकते हैं। अगर वो माइंड में रखेंगे, अब बहुत सारे ऐसे वो हैं जो पहले जॉब करते थे, आज वो इतने इंडस्ट्रीज़ के बहुत बड़े नाम हैं। हमारे धीरू भाई अंबानी जी भी कभी उन्होंने जॉब करी है, तो वो वहाँ तक क्यों पहुँचे हैं? तो एम्प्लॉयज़ को ये ध्यान रखना चाहिए, उनको अपनी लर्निंग पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए। अगर वो चीज़ों को सीखेंगे तो कभी वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनके सपने बड़े हो गए, अगर वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी, वो खुद का स्टार्टअप भी ला सकते हैं। वो मतलब तो उनको, अगर उनकी लर्निंग अच्छी है ना, गॉड पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, तो उनको ये अंडर एस्टिमेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एम्प्लॉयर्स को मैं कहूँगा कि आपको भी अपनी टीम को परिवार मानना चाहिए। अपने देखिए, हम तो इसीलिए राइज किए हैं सर, इनकी ब्लेसिंग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उनको ये समझना चाहिए कि ये किसी के परिवार के बच्चे हैं, ये भी किसी के भाई बहन हैं, कि उनको बढ़ चढ़ के परिवार की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो जो ये हमने तो अपने यहाँ बॉस वर्ड से भी दिक्कत है, मैं जिस चीज़ में नेगेटिव थी ना, हमने उसको हर चीज़ को बदला। मेरे कॉर्पोरेट में फ्रेंड्स थे, वो कहते थे ये प्रेशर, ये टारगेट। अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, टारगेट की बात भी है, ये भी सिखाया जाता है। अगर मैंने जॉब नहीं करी बट मैंने सीखा, उनको सिखाया जाता है यार टारगेट मत पूरा करना कभी भी, आज पूरा कर लोगे तो अगली बार बढ़ जाएगा। मैं कुछ और कहता हूँ, मैं अपनी टीम को कहता हूँ विश करो, जितना तुम्हारा बढ़ेगा अच्छी बात है ना। अगर आप काबिल बनोगे, आज आप 1 लाख का बिजनेस कर रहे हो तो आप 1 लाख में अटके हो कि 1,05,000 नहीं हो रहा। अगर आप ये सीखोगे 10 लाख का बिजनेस कैसे करना है, तो काबिल तो आप ही बन रहे हो ना। अगर कंपनी आपको बेनिफिट नहीं देगी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसलिए नेगेटिविटी को बदलो, हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढो, तो मुझे लगता है समाज में और देश में और दुनिया में बहुत कुछ बदलाव आएगा। ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ स्टार्टिंग। 4 फिल्म जी। एक फिल्म का नाम है मिस्टर बनी, एक फिल्म का नाम है मेरा क्या कसूर, एक फिल्म का नाम है द फ्लाइंग बर्ड, उड़ती चिड़िया, सारे रजिस्टर्ड है, और एक फिल्म का नाम है कलवा दमाद। ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ऐसा कर रहे हैं, मतलब और टीम ढूंढ रहे थे। अब मेरा मतलब काफ़ी सारे लिंक्स भी, पहले लिंक्स नहीं थे, अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ लिंक्स बने हैं, कुछ बॉलीवुड में बने हैं। और मेरा दिल कहता है कि फ़िल्म बनेगी और सुपर हिट जाएगी, और समाज के लिए मेरी फैमिली में ना मतलब बात भी हो जाती है। मैं जब भी मूवी देखने जाता था तो कई बार बात हो गई कि यार ये इस मूवी में मैंने कहा क्या सीखने को है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लाइफ में फ़िल्म एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, लर्निंग के लिए। मैं कहा यार एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए, पर 3 घंटे आपने किसी पे लगाए, कुछ मैसेज टू द सोसाइटी तो होना चाहिए। तो हमारी हर फिल्म जो भी आएगी मैसेज टू द सोसाइटी होगी। और कुछ सालों से, 3-3.5 साल से, जब से गॉड हमने पॉजिटिविटी अपनी मम्मी के नाम पे एक फाउंडेशन बनाई है, और तो हम कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में समाज को कुछ मैसेज भी दे सकें। इसीलिए ये सब चीज़ें टीम का और हम आपके माध्यम से बताने की कोशिश करें कि जीवन में हार मत मानो कभी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कुछ 2-4 शब्दों के विच? देखिए सर, उतार चढ़ाव लाइफ में हमेशा चलते रहेंगे। मैं रामायण की कहानी से बात करूं, राम जी से हमें सीखने को मिलता है, कहाँ वो राज्य संभालना था उन्हें और कहाँ वो 14 साल के वनवास में चला गए, जब गॉड ने अपनी मैसेज से ही बताया है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ करने के लिए क्रिएटिव। उन्होंने जंगल में भी तो मंगल कर दिया था ना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, ह्यूमैनिटी पे आप ध्यान रखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, ह्यूमैनिटी पे आप ध्यान रखो, तो सब कुछ बढ़िया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ में अगर आप बड़ा छोटा सोचोगे, गीता में क्या लिखा है, हर धर्म में क्या लिखा है, किसी को रंग से मत जानो, किसी को उसके मतलब इससे ना जानते हो कि उसकी पोजीशन क्या है, बट हम लोग सब कुछ उल्टा कर रहे हैं। थोड़ा सा सीधा कर लें तो समाज में बदलाव आएगा, यही मेरा मैसेज है।
ਜੀ ਪਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੀਆ खास है हमारा, मतलब नहीं खास तो सारे हैं। इसकी खास बात ये है कि पिछले साल एक्चुअल में ये जूनियर था, तो सीनियर्स को कार मिल रही थी, तो 2 कारें हमें मुजफ्फरनगर डिलीवर करनी थी, तो उस दिन एक ही आई, तो हमने मुजफ्फरनगर वालों को मना कर दिया कि तुम्हें दो बाद में बुला लेंगे, क्योंकि फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो हाँ, तो वैसे ही मेरे दिमाग में है, मैंने कहा यार एक कार इसको भी दे दें क्या। सीनियर से पूछा, मिस्टर बिलाल भी है, शिल्पा मैम, प्रिया मैम, सबसे पूछा भाई एक कार इसको भी दे दें क्या। ये हर का कि बाहर का काम सारा यही देखता है, किसी को कुछ चाहिए, कोई बैंक का काम है, कोई एफिडेविट बनना है। मेरे साथ खास बात थी, मुझे इवेंट्स में जाना होता था, तो अकेले जाना मतलब प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे पे अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स आते थे। टाइम बहुत शॉर्टेज लिमिट उन्ना की टाइम होता कम ज़्यादा। कई बार ऑफर आ जाती है, अब किसी ने कह दिया कि यार कल सुबह आपको वहाँ पे आना है, अब तो टाइम नहीं है, अब मैं किसको बोलूँ, कोई बिजी है, कोई संडे है। अब 11 बजे मेरे पे फ़ोन आया, तो मैं इसको 11 बजे फ़ोन कर लेता था, भाई सुबह 6 बजे रेडी होकर दिल्ली जाना है, रात को 11 बजे। हाँ, तो ये खुशी में मैं कहा प्रॉब्लम तो नहीं, कहता नहीं। तो मैंने कहा इसकी यार ये तारीफ़ है। तो पिछले इंटरव्यू में बोला भी था, कई लोग तो ढूंढते हुए आए थे वो बंदा कौन है जिसको आप 11 बजे फ़ोन करते हो। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं, ये तो बंदा है, इसका नाम भी निर्दोष है। जब ये जॉब करने आया था, मैं पूछा सच में निर्दोष है क्या भाई। अब दिक्कत क्या हुई, मतलब वैसे नहीं, मतलब ये जोक है। इसके जैसी इसको पिछली बार कार मिली, 3 महीने में इसकी शादी होगी, कार एक और आ गई, इस पर 2 पे सुहागा हो गया मतलब। वो तो हो गया, पर अब मैं 11 बजे फ़ोन नहीं कर सकता सर, क्योंकि अब नई नई शादी है सर, भाभी जी परेशान हो जाएगी कि 11 बजे कैसे बॉस है तुम्हारे, फिर वही बॉस वर्ड आ जाएगा, तो मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। कहते तो फ़ोन करते हो 11 बजे? नहीं फ़ोन तो नहीं करते। हर बजे हाँ, लेकिन मतलब जब से शादी हुई है तब से ऐसे बात नहीं होती है। पहले कभी बात मतलब पहले तो बात होती रहती थी सर से 11 बजे, मतलब 10 बजे, 9 बजे कभी भी फ़ोन, लेकिन अब नहीं करते हैं सर फ़ोन। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? पहले तो मेरे लिए सरप्राइज़ था, मतलब मुझे बताया ही नहीं गया था कि भाई आपको भी गाड़ी मिल रही है, तो मुझे पता नहीं था। तो जब हम एजेंसी गए हुए थे तो सर ने मेरे को बोला कि भाई निर्दोष ऐसा करो, ये लो मतलब कुछ पैसे, समोसे वगैरह स्नैक्स या कुछ ले आओ, मिठाई वगैरह ले आओ। मैं जी ठीक है। तो मैं चला गया था। फिर मैं मार्केट से जैसे ही आया तो एक लास्ट केक मतलब कट रहा था, तो सर ने बोला कि भाई एक केक और ले आओ। तो मैं क्या एक केक, यार पता नहीं किसके लिए, अब किसको मिल रही है, कि भाई निर्दोष। मैं क्या हाँ जी, आजा भाई केक काट। तो मैं एकदम मतलब मेरे लिए तो सरप्राइज़ था, मैं तो एकदम चौंक गया था, मतलब कभी सोचा नहीं ऐसे गाड़ी के लिए। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मतलब कुछ मतलब इतना एक्साइटेड और इतनी खुशी कि बंदा जाहिर नहीं कर सकता, मतलब शब्द ही नहीं रहे। हाँ, शांति रह गया था मैं मतलब। और घर पे भी किसी को पता नहीं था, जब मुझे खुद ही नहीं पता था तो फिर मैं घर पे भी लेके गया, घर वाले भी बहुत खुश हुए, फैमिली में, गांव में भी पूरे में मतलब नाम हो गया कि हाँ भाई कोई लड़का है जिसको मतलब इतनी तरक्की करी है, उसे गाड़ी मिली है कंपनी की तरफ से। ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ EMPLOYEES ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? पहला तो ये होता है कि भाई जो तुम्हें काम दिया हुआ वो अपना ईमानदारी से करो, अच्छे से करो और पूरा करो। क्योंकि आप अगर पूरा काम करके नहीं दोगे और अच्छे से करके नहीं दोगे तो अगला आदमी भी कहाँ से सोचेगा आपके लिए। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना काम पूरा। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ बिल्कुल जी। ਹੋ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲकुल जी पाटी सर। 3 इडियट फिल्म से सीखा था इनको, यंगस्टर को सबको मोटिवेट करता हूँ, आप काबिल बनो, सक्सेस के पीछे मत भागो। अगर काबिल बन गए ना, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो आपको अपने आप को काबिल बनना है, बस यही मैसेज है मेरा सबसे। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ सर ये हमारे यहाँ अभी हमने
कारों के साथ साथ जिनको जो 1 साल पुराने हैं उनको 1-1 महीने की सैलरी का बोनस भी दिया है, और जो नए आए हैं उनको उनके एवरेज के हिसाब से दिया है। और इस बार ही मैंने अनाउंस किया है कि आप सब आशीर्वाद दो कि कंपनी इस लायक हो कि आने वाले टाइम में 1 महीने की जगह 2 महीने का भी बोनस दिया जाए। तो ये भी मैंने किसी फिल्म से सीखा था। और एक और चीज़ मैंने गुरु मूवी से सीखी थी, जो आपने मेरा सपना पूछा, तो गुरु मूवी मेरी फेवरेट मूवी है। उसमें वो कहते थे ना कि मेरी ताकत कौन हो, तो वो कहते थे आप सब। तो मैं भी इनको जब मीटिंग करता हूँ तो इनको यही बोलता हूँ कि मेरी ताकत हो आप सब। तो वही सब कुछ फिल्मी है सर हमारा। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲਾਈ नहीं कह सकते, परिवार है भाटिया साहब का, क्योंकि भाटिया साहब हम इनको पहले इनका नाम रखते थे टीम, फिर रखा स्टार्स, फिर सेलिब्रिटी, इस साल नया दिया रॉक स्टार्स। ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मैं मेरा नाम प्रिया है और मैं परचेज हैंडल करती हूँ यहाँ पे। 4 साल हो गए मुझे सर इस कंपनी में। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ? जी, मुझे लास्ट ईयर ही सर कार मिल गई थी और इस बार हमारे जूनियर्स को मिली है, तो बहुत खुशी की बात है कि लास्ट ईयर 12 थी, इस बार 15 है और ये नंबर बढ़ता जाएगा। ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जी सर, सब बहुत सेटिस्फाइड है, हम खुद से बहुत सेटिस्फाइड है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ वर्क प्रेशर है ही नहीं है। यहाँ पे सब फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं, सब बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, फीमेल्स के लिए स्पेशली। गर्ल्स हम आप देखोगे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो सबके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और कभी सर ने ऐसे फील भी नहीं कराया। बॉस वाली नेचर कभी हमने देखी नहीं है सर की। सर बहुत, जब काम के टाइम पे हम काम करते हैं और एंजॉयमेंट के टाइम पे हम एंजॉयमेंट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग वैष्णो देवी के ट्रिप पे भी गए थे, वहाँ हमने एंजॉय किया, और जब काम होता है तो हम काम भी पूरे पैशन से करते हैं। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿਨਰ ਸਰ। ਵਿਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ सर। ਗ੍ਰਾਫਿਕ हाँ ਡਿਜ਼ਾਈਨ जी। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ? बहुत बढ़िया जी, 3 साल हो गए मेरे को, काफ़ी अच्छा लगता है काम करके। हाँ जी, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੌਬ ਤੋਂ? हाँ जी, हाँ जी, पूरे खुश हैं। जी सर। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? सर मैंने सभी को मैसेज दे रहा हूँ कि कमी मत ढूंढो। हमने बचपन से सीखा है ना कि गिलास कैसा देखोगे, कि आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। मैं यही कहूँगा कि गॉड का थैंक्स। मेरा एक और चीज़ है कि मेरा मानना है कि जो हमारी लाइफ है, मैंने कहा ना मेरी सब चीज़ें फिल्मी हैं, तो मैंने फिर दिमाग लगाया। जब मैं प्रॉब्लम्स में होता था तो मैं पॉजिटिव में दिमाग लगाया। मेरे को लगता है कि मैं सबको बोलता हूँ कि लाइफ जो है ना, हमारे को एक फ़िल्म की टिकट दी है गॉड ने, जो भी अलग अलग धर्म में जिनको भी मानते हैं। गॉड मीन्स एक ने मतलब, और वही डिवाइन पावर है, वही सुप्रीम पावर है। फिल्म की टिकट की तरह हमें ज़िंदगी दी है, उसका दी एंड उनके हाथ में। अगर आपको अपनी फिल्म सुपरहिट करनी है तो कुछ ऐसा काम कर दो समाज के लिए कि आप बाद में भी ना हो तो आपको याद करें लोग वर्षों तक। यही मेरा मैसेज है, यही मुझे ब्लेसिंग चाहिए भगवान से पूरा पूरा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। वेलकम जी। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਸੀ, ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਔਨ 에ਅਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ।